Chalo, so the next subtopic which we are going to study is globalization, liberalization, and privatization and its challenges. It is a subtopic under chapter 1, Introduction of Public Administration, paper 1. ठीक है, देखो, the major trend today in this contemporary world is about globalization. और globalization क्या आज शुरू नहीं हुआ, it started in about 18th century only, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ था. तब से वो कॉन्सेप्ट एज अ कॉन्सेप्ट इट डेवलप्ड एंड आज मॉडर्न वर्ल्ड में इट हैज़ कम आउट इन इट्स एप्लीकेशन फॉर्म. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इज़ बेसिकली अ सर्च फॉर अ न्यू सोसाइटी. इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ग्लोबल विलेज compressed into an ecological, financial, trading and cultural exchange oriented society. It lays down possibilities for greater democratization of governance both in political as well as economic form. So globalization is now a widely used term. It has assumed a multidimensional character encompassing economical, social, political and cultural activities. It incorporates a bundle of different economic, technological, political and even ecological processes which develop the society in various sectors of the world. The UN document defines globalization as increased and intensified flow between countries. These flow are of goods, services, capital, ideas, information, people, which produce cross-border immigration of economic, social and cultural activities एंड आइडियाज़ एज वेल. तो देखो, किसी भी कंट्री की बाउंड्री होती है और फिर यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते दो कंट्री के बीच में. बट जब ग्लोबलाइजेशन होता है, इट डज नॉट मीन कंट्री ने वो बॉर्डर, फिजिकल बॉर्डर तोड़ी है. इट एक्चुअली मीन्स जो कल्चरल कॉन्सेप्ट्स है, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स है, समझो एक मेडिकल साइंस है या एक फ़िलासफ़ी है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है. फिर इकोनॉमिक फ़िलासफ़ी है, फिर पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रही है विदाउट ब्रेकिंग द फिज़िकल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री. इसको ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. बेसिकली इट इज़ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन अ कंट्री and exchange of these things internationally through cross border relations, मतलब going beyond its national jurisdiction. Globalization refers to a process by which particular societies are getting incorporated into a single worldwide market society. It means world is becoming a global market, as well as the nation states are being integrated, as well as they are becoming internationally competitive as well. Okay, the nation state integrates its national economies into global economies through trade and investment, which is supported by technological advancement and is stimulated by political structures of various countries and their philosophies. मतलब कुछ कंट्रीज़ होती है जो अलग कंट्री से FDI वगैरह अलाउ नहीं करती, कुछ कंट्रीज़ अलाउ करती है, कुछ कंट्रीज़ पूरी FDI पे डिपेंडेंट होती है, कुछ कंट्रीज़ सब खुद के हिसाब से ही करना चाहती है. सो इस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन के रेंज उसका बढ़ता जाता है या कम होता जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में. सो इवेंचुअली व्हाट इज़ इमर्जिंग इज़ अ न्यू ग्लोबल सोसाइटी अकम्पनिंग अ न्यू ग्लोबल कल्चर. दिस इज़ ग्लोबलाइजेशन. फिर आता है लिबरलाइजेशन. ठीक है, लिबरलाइजेशन हैज़ कम टू बी इक्वेटेड विद द चेंज इन द अप्रोच टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. मतलब क्या, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर टू ऑल्टर द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव पावर ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज. ठीक है, it is more focused, liberalization is focused on market oriented economy, and it proposes certain obligations on the state, like to move towards deregulation, privatization, selective state withdrawal,
expenditure cut, and also the aim to integrate into global economy. Political liberalism is based on the belief that the man is a moral and a rational being, and by that virtue, he has freedom, and he deserves equality of the rights endowed to him, rights like right of life, liberty, and property, etc. ठीक है, जो and whatever the natural rights are there, जब वो हर मैन को मिलेगा, that will lead to political liberalism. Man is the best judge of his own happiness, ये concept है इसमें. और the concept of economic liberalism जो है ना, it stands for a laissez-faire or a free market economy. laissez-faire, LAISSEZ-FAIRE, state. राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी आता है इसमें, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेज आता है, कंपटीशन आता है, determination of price of goods and services as well as the price of factors of production in the as per the market forces आता है. ठीक है, मतलब मार्केट खुद ही डिटरमाइन करेगा द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट द स्टेट. या फिर स्टेट रेगुलेट भी कर सकता है कुछ एरिया में, ये भी एक पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन है. टाइप ऑफ लिबरलाइजेशन होते हैं. ठीक है, इस सब का बेसिस होगा लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एंड इसका सबका एम होगा मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेट फंक्शंस. मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरलाइजेशन का एम क्या है, तो स्टेट को बोलता है कि दैट स्टेट इज़ द बेस्ट स्टेट विच गवर्न्स द लीस्ट. ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन इज क्लेम टू बी रीओरिएंटेशन ऑफ इकोनॉमीज इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट प्रिंसिपल्स. इसी के अंदर फिर प्राइवेटाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, तो फिर ग्लोबलाइजेशन के अंडर ही लिबरलाइजेशन, उसके अंडर ही प्राइवेटाइजेशन, तो सब कुछ एक्चुअली इट कम्स अंडर ग्लोबलाइजेशन ओनली. फिर नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन. देखो, प्राइवेटाइजेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर. Such a transfer being necessarily associated with market liberalization and deregulation and as per the changing macroeconomic context. The competitive environment and the labor market of the country determines the type of privatization which is required in the country. Privatization is actually antonym, मतलब opposite of nationalization. और ये जो प्राइवेटाइजेशन के गोल्स है, इट में भी अचीव थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज लाइक, एक तो है देखो स्टॉक मार्केट फ्लोटेशन. मतलब इसमें क्या आता है, कंसिस्ट द सेल ऑफ एंटरप्राइज टू द जनरल पब्लिक विथ इक्विटी ऑफर्ड ऑन फिक्स्ड प्राइस और थ्रू टेंडरिंग प्रोसेस. शेयर्स कैन बी मार्केटेड एंड ऑल द इक्विटी मे बी सोल्ड और द गवर्नमेंट में रिटेन सम ऑफ इट्स प्रोपोर्शन. तो स्टॉक मार्केट का जो इक्विटी है उसको सेल करके भी स्टेट प्राइवेटाइजेशन कर सकता है. फिर दूसरा है सेल टू थर्ड पार्टी. ठीक है, इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेल ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ द शेयर होल्डिंग टू अ सिंगल परचेसर और अ ग्रुप ऑफ परचेसर्स. द सेल मे बी प्राइवेट प्लेसमेंट विथ इन्वेस्टर्स और ट्रेड विथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जो थर्ड पार्टी का जगह लेंगे एंड दे विल हैंडल द कंपनी देयर आफ्टर. फिर तीसरा है मैनेजमेंट एम्प्लॉय बाय आउट. चौथा है लीजिंग और फ्रेंचाइजिंग. ठीक है, मतलब क्या, फ्रेंचाइजी कोई थर्ड पार्टी आकर स्टेट का फ्रेंचाइजी बन जाएगा टू प्रोवाइड द सर्विसेज. एंड फिर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली चीज़ है सेल ऑफ एसेट्स. इसमें क्या आता है, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन द पब्लिक सेल, इट विच इंक्लूड्स पब्लिक सेल ऑफ स्टेट ओन एसेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, हाउसिंग, स्टॉक. ठीक है, फिर अलग अलग परसेंटेज ऑफ सेल होता है, मतलब लेस देन 50 या फिर मोर देन 50 प्लस मैनेजमेंट का भी अगर ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट के पास तो स्ट्रैटेजिक सेल हो जाता है. कुछ सेक्टर्स में स्ट्रैटेजिक सेल अलाउड है, कुछ सेक्टर्स में नहीं है. कुछ सेक्टर्स में ज़्यादा एफडीआई अलाउड है, कुछ सेक्टर्स में एफडीआई कम अलाउड है, कुछ सेक्टर्स में एफडीआई अलाउड ही नहीं है. तो इस हिसाब से एक कंट्री खुद का प्राइवेटाइजेशन का पॉलिसी बनाता है, लिबरलाइजेशन का प्राइवेट पॉलिसी बनाता है, एंड इवेंचुअली उस हिसाब से वो ग्लोबल मार्केट में इंटीग्रेट होते जाते हैं, एंड दैट फॉर्म्स द ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट.
ठीक है, तो ये हो गए ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। अभी इनका इम्पैक्ट क्या हुआ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे जरा देखते हैं। देखो, इन द वर्ल्ड रिमार्केबल चेंजेस हैव टेकन प्लेस फ्रॉम 1980s actually, and in India particularly from 1990s. Okay, there were new societal demands and there was increase in competition of for providing the services. This led to the emergence of new kind of public administration based on managerial orientation. There is a criticism on control oriented, people avoiding and rule bound Weberian bureaucratic model, and it emphasized for a need of model that would focus on result and cost effectiveness in public governance, and that is where the LPG concept of public administration developed. In this scenario, many flexible organizations design and practice the managerial concepts of public administration. देखो, there are some sectors of public administration which are more welfare oriented and there are some sectors, जैसे कि कोई समझो टेलीकॉम सेक्टर हो गया या फाइनेंस में होगा, वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे सकता है एज़ कम्पेयर टू सम अदर सेक्टर्स जहाँ पे समझो वुमेन एम्पावरमेंट या सोशल सर्विसेज, वहाँ पे ज़्यादा वेलफेयर ओरिएंटेड होगा। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो टाइप ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी दो जगह पे दी जा सकती है, और उस हिसाब से वो कंट्री का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप होता है अंडर एलपीजी। देखो, टू मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिसेप्टिव टू द ग्लोबल प्रेशर्स, देयर वर सम रिफॉर्म्स। ग्लोबल रिफॉर्म्स क्या क्या चले थे? एक तो चल रहा था डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, फिर डाउन साइजिंग, फिर डिसइन्वेस्टमेंट, फिर मार्केटाइजेशन, फिर प्राइवेटाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें हर कंट्री ने अटेम्प्ट की है, ठीक है। फिर उससे क्या क्या अलग अलग फीचर्स उसमें डेवलप हुए हैं। एक तो आता है द एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक चॉइस थियरी टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसके पहले सब स्टेट ही डिसाइड करता था कि सिटीजन्स को क्या चाहिए। अभी सिटीजन्स के पास वॉइस है कि उनको एक्चुअली क्या चाहिए, एंड उस हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना सर्विसेज देगा। दिस इज़ पब्लिक चॉइस थियरी का एप्लीकेशन। फिर देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन पब्लिक मैनेजमेंट वाया मार्केट मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो मार्केट ओरिएंटेड मॉडल ऑफ गवर्नेंस होगा। फिर मतलब क्या, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मॉडल होगा गवर्नेंस का। ऐसा जब मॉडल होगा तो इट कैन compete with the private sector also. The governance has changed. It is not only now state centric, it includes more from private sector also and civil society organizations also. So यही liberalization का effect हुआ है. Then the market has become more की डिटर्मिनेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो पहले टॉप डाउन अप्रोच होता था, अभी बॉटम अप है कि मार्केट किस हिसाब से चेंज हो रहा है उस हिसाब से पब्लिक पॉलिसी डेवलप की जाती है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी, ओके, ये बढ़ती गई है अंडर एलपीजी। फिर पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बड़े बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हुए हैं। फिर देयर इज़ अ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है, और गवर्नमेंट का साइज़ कम हो गया है बिकॉज देयर इज़ डाउन साइजिंग, एंड गवर्नमेंट अभी रोल बैक स्टेज में है। मतलब वो रेगुलेटरी फंक्शंस हैंडल करती है, तो सब कुछ जब स्टेट हैंडल नहीं करता तो डाउन साइजिंग हो गया है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे इम्पैक्ट्स थे एलपीजी के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अब एक छोटा कॉन्सेप्ट था फ्रेडरिक्स का, सिंट्रोपी का, ओके। तो Fredericks had come out with this word syntropy, which is actually amalgamation of two words, synthesis and entropy. According to this concept, the nation state will continue, but not in the similar fashion as it was earlier. There will be changes enhanced by global cooperation and interaction at various layers of organization. Therefore, अलग अलग व्यूज़ बढ़ते जाएंगे। एक तो ग्लोबल सिटीजन्स बनते जाएंगे, मतलब नेशनल सिटीजन से ग्लोबल सिटीजन बन जाएंगे। फिर स्टेट का रोल बैक और बढ़ते जाएगा। फिर ग्रुप्स बनेंगे बेस्ड ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अलग अलग एक फ़िलोसफी बन जाती है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उस हिसाब से ग्रुप्स बनेंगे। और ये सब का मिडल पाथ जो होगा वही कोऑपरेशन का पाथ होगा, जिसको सिंट्रोपी बोलते हैं।
ठीक है। एंड अभी चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? एक तो है लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इज ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट, बट जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जाएगा तो ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बढ़ेगा। मतलब एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है और बहुत सारे कंट्रीज़ का एक सिमिलर टाइप ऑफ व्यू है। समझो इंडिया, यूके, ये दोनों पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी पर है, तो ये दोनों का भी एक फ़िलासफ़ी बनेगा और वो ग्लोबलाइजेशन का फ़िलासफ़ी बनते जाएगा और उस हिसाब से सॉवरेनिटी ग्लोबल सॉवरेनिटी बनती जाएगी। मतलब एग्जांपल क्या, जो अभी समझो लॉज है, जो एक कंट्री के लॉ है, दे विल बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल नॉर्म्स। मतलब जो सिविल राइट्स, समझो यूएन के सिविल राइट्स, यूएन के चाइल्ड राइट्स, वो यूएन के वुमेन एम्पावरमेंट राइट्स, सो दे उनके जो फंडामेंटल्स है दे विल गाइड द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द वेरियस कंट्रीज़, ठीक है। और फिर जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी इट विल लार्जली डिपेंड ऑन द इंटरनेशनल फैक्टर्स। मतलब जो ऑयल का प्राइस है, डॉलर का प्राइस है, इस हिसाब से। अभी इट कैन अफेक्ट डेमोक्रेसी ऑल्सो। देखो, इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन कंट्री ऑन अनदर कंट्री इज गेटिंग स्ट्रेंथन डे बाय डे। फॉर एग्जांपल देखो, मैकडोनलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, दैट इज़ अमेरिकन पॉलिसीज़। मतलब उनके सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल या मार्केट पॉलिसीज़ वो अभी इंडियन कल्चर पे अफेक्ट करते हैं। तो अमेरिकन कल्चर इंडियन कल्चर में असिमिलेट हो रहा है या फिर इंडियन कल्चर कोई और कंट्री के कल्चर में असिमिलेट हो रहा है। सो इस हिसाब से जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क डेवलप हुआ है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल पैरामीटर्स, वो चेंज होते जाता है। ऐसी चीज़ें क्या करती है, समझो मैकडोनलाइजेशन क्या करता है, इट टेक्स अवे चॉइसेस फ्रॉम द लोकल पीपल। मतलब लोगों को सिर्फ मैकडोनलाइजेशन, अब उसी हिसाब से वही चॉइसेस, इस हिसाब से मार्केट डेवलप किया जाता है कि लोग सिर्फ वही चीज़ों को चूज़ करें और इस हिसाब से क्या होता है, उनका लॉस ऑफ चॉइस हो जाता है लोगों का। फिर ये इट अफेक्ट्स द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, बेसिकली पावर ऑफ चॉइस। तो ये क्रिटिसिज्म है। मतलब ये जो चैलेंजेस है ना, मतलब इट अफेक्ट्स द सॉवरेनिटी, इट अफेक्ट्स द डेमोक्रेसी, ये एक्चुअली क्रिटिसिज्म भी है ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी कॉन्सेप्ट का। देखो, जो कम्युनिटी फॉर्मेशन है वो भी चेंज होते जाता है। देखो, बहुत अभी एक कंट्री बहुत सालों से 100-200 सालों से एक जगह पे एक टाइप के लोग, एक कम्युनिटी रहती आ रही है और इस हिसाब से वो कम्युनिटी डेवलप हुई है। और अभी ये ग्लोबलाइजेशन के एरिया में सब बाउंड्रीज निकलती जा रही है और लोग एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर जो कम्युनिटी फॉर्मेशन है वो उतना स्ट्रांगली डेवलप नहीं होगा। फिर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। देखो, बहुत ज़्यादा एफडीआई आएगा, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नई नई जगह लगेगी, एरिया लगेगी, तो वहाँ के एरिया के लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से एफडीआई जो आ रहा है या फिर नए नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं या फिर ग्लोबल कॉन्सेप्ट जो बन रहे हैं, इट में अफेक्ट द ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल हैबिटेशन ऑफ लोकल पीपल, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट का इशू आ सकता है, माइग्रेशन का इशू आ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना बढ़ सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कल्चर, वैल्यूज़ एंड आइडियल्स एंड ट्रेडिशन। देखो, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इज़ एक्चुअली इट ब्रिंग्स अबाउट एम कल्चर मतलब क्या, मैकडोनल्ड्स, MTV, मैकिन्टॉश, एक्सेट्रा। मतलब ये सारा अमेरिकन कल्चर है मोस्टली। इट कम्स इन and then it slowly disturbs the roots of the traditional ethos and cultural values of any particular country, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, कोई भी कंट्री का जो डेवलप कंट्री एक बार बन जाता है, समझो USA टाइप, तो वो हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को और डेवलपिंग कंट्रीज़ इन्फ्लुएंस करेंगे लो डेवलप कंट्रीज़ को। तो इस हिसाब से वो सर्कल चलता जाता है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल एलीट क्लब। मतलब क्या, अभी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसके बाद वो पॉलिटिकल सुपर गवर्नमेंट बन देते हैं, जैसे कि G8, G20, OECD, ये सारे जो ये फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुपर पॉलिटिकल पावर्स है। ये एक्चुअली डिटरमाइन करते
मतलब बेसिकली वो पॉलिटिकल हेजेमनी डेवलप करते हैं ये सुपर पावर्स उस हिसाब से, और वो फिर हर कंट्री पर इफ़ेक्ट आता है उसका। ऑल्सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF और उनके जो नॉर्म्स है वो भी अफेक्ट करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो इस हिसाब से हेजेमनी डेवलप हो जाती है। तो कंट्री के पास खुद के जो राइट्स है वो थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, और ये इंटरनेशनल जो राइट्स है ये सुपर पावर्स के वो बढ़ते जाते हैं इन ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और जब ये सुपर पावर्स बनते जाते हैं तो जो लो डेवलप कंट्रीज़ है वो दे लार्जली डिटरमाइन और दे आर डिपेंडेंट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज़। फिर डेवलप कंट्रीज़ क्या करेंगे, दे गिव देम मनी, और फिर वहाँ पे वो लोग उनका पॉलिटिकल बेस वगैरह बनाते हैं, और इस हिसाब से समझो वो एरिया को वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ कॉलोनाइजेशन ही हो जाता है फिर आगे जाके। देखो ग्लोबल इश्यूज है आज, अभी कंट्री कोई भी कंट्री में कोई पर्टिकुलर कंट्री के इश्यूज तो है ही, समझो रीजनल प्रॉब्लम्स, रेसिज्म, कास्ट का प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा वो तो है, प्लस ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी है जैसे कि एनवायरमेंटल इश्यूज, ओके, क्लाइमेट चेंज, चाइल्ड राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे समिट्स वगैरह होते हैं उसका इफेक्ट भी बनता है हर कंट्री पे। और फिर द स्टेट हैज़ टू हैंडल much more of the work than it used to handle earlier. The globalization has infused market principles and orientations to the state administration. More and more market philosophies are practiced and followed by the state today. And if the care is not taken, the state might lose its ethos and values of the welfare concept, and it might become more मार्केट ओरिएंटेड। अभी कोई भी नेशनल इशू या फिर दो कंट्रीज़ के बीच का इशू दो कंट्रीज़ के बीच का इशू नहीं होता, वो एक वर्ल्ड वाइड इशू बन जाता है। देखो अभी इज़राइल पैलेस्टाइन का इशू होगा, अगर वो लोग दोनों में वॉर होगा तो सारी पूरा वर्ल्ड वहाँ पे उस पर इम्पैक्ट होगा, या पूरा वर्ल्ड का उस पर कमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, इसके लिए अभी हर कंट्री को जो लॉज होते हैं, इंटरनेशनल लॉ होते हैं, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। अदरवाइज़ अदर कंट्रीज़ अगर वो लॉज फॉलो नहीं किया, समझो दो वॉरिंग कंट्रीज़ ने, तो बॉयकॉट कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में उनको, तो इंटरनेशनल इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस हिसाब से संभल के चलना पड़ता है। तो ये इफ़ेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। फिर एक है हेग्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर, HAQUE, हेग्स कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस ऑफ बार्गेनिंग पावर। मतलब इन द एरा ऑफ LPG, the developing countries are weak in terms of finance, technology and other skills as compared to developed countries. Therefore, there is an increasing dependency of these on the developed countries, and also low developed countries का on developed countries. So उनका bargaining power कम होते जाता है हर कंट्री का, और developed countries के पास बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है। फिर प्राइवेटाइजेशन का प्रायोरिटाइजेशन भी होना चाहिए, मतलब हर सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन करना ज़रूरी नहीं है। स्टेट शुड डिटरमाइन कि हर कंट्री का स्टेट शाल डिटरमाइन कि कौन सी प्रायोरिटी में कौन से सेक्टर्स को प्राइवेटाइजेशन किया जाना है। देखो कुछ कंट्रीज़ है US जैसे, वहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ प्राइवेटाइज़ किया जाए क्योंकि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फिर कुछ कंट्रीज़ है चाइना और रशिया, वहाँ पे अलग अलग टाइप का प्राइवेटाइजेशन है, कम है। फिर कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे बिल्कुल नहीं है, कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे पूरे तरीके से है, कुछ कंट्रीज़ है जो डिपेंडेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ पे। तो इस हिसाब से हर कंट्री ने अपना अपना प्रायोरिटी डिटरमाइन करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन का, या फिर स्कोप डिटरमाइन करना चाहिए कितना लिबरलाइजेशन होना चाहिए। और ऑल्सो इट हैज़ टू डिटरमाइन कि अगर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो कितना ग्लोबलाइजेशन में भी जाना चाहिए। फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज लाइक एजुकेशन, सर्विस, हेल्थ, सो दैट जब कोई भी कंट्री का सिटीज़न एक ग्लोबल सिटीज़न बनेगा तो वो एक स्ट्रॉन्गर ग्लोबल सिटीज़न बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये तभी होगा जब प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगा इन ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी जैसे कि ब्रिज, रोड, रेलवेज, एयरवेज, फिर ड्रिंकिंग वाटर से लेके सब चीज़ें जब स्टेट ये सारी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल करेगा, हैंडल करेगा और एफिशिएंट सर्विसेज देगा यहाँ पे, तो जो सिटीजन है वो स्ट्रॉन्गर ग्लोबल सिटीजन बनेगा, एंड इवेंचुअली वो कंट्री एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लोबल पावर बन सकती है। ठीक है,
तो ये था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एंड इट्स चैलेंजेस एंड इम्पैक्ट एक्सेट्रा।